सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसी चैप्टर में पिछले वीडियोस में हम लोगों ने लैंड और सॉइल के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग वाटर के बारे में पढ़ते हैं। वाटर इज़ द वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। इट इज़ देयर फॉर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट। जैसा कि आप सबको पता होगा कि 3/4 जो अर्थ सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है, इसलिए उसे वाटर प्लैनेट भी कहा जाता है। It was in the primitive ocean that life began almost 3.5 billion years ago. Even today, the ocean covers two-thirds of the Earth's surface and support a rich variety of plant and animal life. The ocean water is, however, saline and not fit for human consumption. Fresh water accounts for only about 2.7%. Nearly 70% of this occurs as ice sheets and glaciers in Antarctica, Greenland and mountain regions. Due to their location, they are inaccessible. Only 1% of fresh water is available and fit for human use. It is found as groundwater, as surface water in rivers and lake, and as water vapor in the atmosphere. आपको ये जो परसेंटेज है वो जानना ज़रूरी होगा, है ना, कि फ्रेश वाटर सिर्फ 2.7% ही है और उसमें भी 70% जो है वो आइस शीट ग्लेशियर्स के फॉर्म में है। सिर्फ 1% ही फ्रेश वाटर है जो कि ह्यूमन यूज़ कर सकता है। तो आप सोचें कि कितना कमी है फ्रेश वाटर की, है ना। फ्रेश वाटर इज़ देयर फॉर द मोस्ट प्रीसियस सब्सटेंस ऑन अर्थ. वाटर कैन नाइदर बी एडेड nor subtracted from the earth. Its total volume remains constant. Its abundance only seems to vary because it is in constant motion, cycling through the oceans, the air, the land, and back again, through the process of evaporation, precipitation, and runoff. This, as you already know, is referred to as water cycle. So इसमें यह बताया गया है कि वाटर जो है वो बहुत ही प्रीसियस सब्सटेंस है अर्थ पे। ना वाटर को ऐड किया जा सकता है, ना वाटर को सब्सट्रैक्ट किया जाता है। वाटर का वॉल्यूम सेम ही रहता है ना। जैसे जो सी है उससे प्रेसिपिटेट होता है, मतलब सी से इवापोरेट होता है, एंड देन इवापोरेट के बाद प्रेसिपिटेशन होता है, मतलब बारिश होती है। सो सी से जब इवापोरेट हो रहा है तो बादल में जा रहा है, बादल से फिर प्रेसिपिटेट हो रहा है, मतलब बारिश हो रही है तो वापस धरती पे आ रहा है। सो आप देख सकते हैं कि वाटर कांस्टेंट ही रहता है। इसको इवापोरेशन प्रेसिपिटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, वाटर साइकिल, जो आपने छोटे में पढ़ा होगा। Human use huge amount of water not only for drinking and washing but also in the process of production. Water for agriculture, industries, generating electricity through reservoirs or dams are the other usage. Increasing population, rising demands for food and cash crops, increasing urbanization and rising standards of living are the major factors leading to shortage in supply for fresh water either due to drying up water source or water pollution. 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है आपको, यूजेस ऑफ वाटर। तो हम लोग ड्रिंकिंग और वॉशिंग के लिए तो यूज़ करते ही हैं, साथ साथ में एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, एंड जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसके डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए भी वाटर यूज़ करते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी एक बार देख लेते हैं। देयर इज़ स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, parts of western USA, northwest Mexico, parts of South America and entire Australia are facing shortage in fresh water supply. अभी इन parts में fresh water का shortage हो रहा है। Countries located in climatic zone most susceptible to droughts face great problems of water scarcity. Thus, water shortage may be a consequence of variation in seasonal or annual precipitation, or the scarcity is caused by over exploitation and contamination of water resources. इसका मतलब हमको ढंग से वाटर को कंजर्व करना पड़ेगा, वरना क्या होगा, वाटर स्कैरसिटी होगा, बहुत सारे ऐसे जगह में पानी की कमी हो जाएगी, है ना। सो कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स कैसे करें कंजर्व, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पानी की कमी तो हो रही है पर कंजर्व कैसे करें। Access to clean and adequate water sources is a major problem facing the world today. Steps have to be taken to conserve this dwindling resource.
Even though water is a renewable resource, its overuse and pollution make it unfit for use. Discharge of untreated or partially treated sewage, agriculture chemicals, and industrial effluents in water bodies are major contaminants. हमें ये सब contaminants हटाना होगा, तब हम लोग वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, वरना इन सब के कारण तो वाटर पॉल्यूशन होगा. They pollute water with nitrates, metal, and pesticide. Most of these chemicals are non-biodegradable and reach human bodies through water. अब केमिकल जो है वाटर में है, तो हम लोग वाटर कंज्यूम करते हैं तो केमिकल हमारे अंदर भी आ जाते हैं, जिससे हमारी जान को भी खतरा है. वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दिस एफ्लुएंट suitably before releasing them in water bodies. Forest and other vegetation covers slow the surface runoff and replenish underground water. अब जो फॉरेस्ट है वो क्या करता है, रन ऑफ से बचाता है, जो वाटर रन ऑफ होता है ना उससे बचाता है. साथ साथ में वो अंडरग्राउंड जो वाटर होता है उसको रेप्लेनिश कर देता है, मतलब उसको वापस ले आता है. वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ. अभी क्या होता है, बारिश हुई, सरफेस रन ऑफ जो भी छत पे पानी है वो नीचे गिर जाता है, नीचे गिरता है, फिर ज़मीन सोख लेती है, या फिर क्या होता है कि डर्टी हो जाता है. तो आप क्या कर सकते हो, वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हो. द कैनल यूज्ड फॉर इरीगेटिंग फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइन टू मिनिमाइज लॉसेज ऑफ वाटर सीपेज. फिर कैनल को बना सकते हो ताकि हम लोग जो रन ऑफ हो रहा है, पानी जो बेकार बह रहा है, उसको हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं एंड उसे इरीगेशन में यूज़ कर सकते हैं. स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली इरीगेट द एरियाज बाय चेकिंग वाटर लॉसेज थ्रू सीपेज एंड इवापोरेशन. अब स्प्रिंकल यूज़ कर सकते हैं, ये आप पिक्चर में देख रहे होगे, ये स्प्रिंकलर यूज़ किया है वो. इन ड्राई रीजन्स विथ हाई रेट्स ऑफ इवापोरेशन, ड्रिप और ट्रिकल इरीगेशन इज़ वेरी यूजफुल. The valuable water resource can therefore be conserved by adopting these means of irrigation. हम लोग जो इम्पोर्टेंट वाटर रिसोर्स है उसको कंजर्व कर सकते हैं अलग अलग इरिगेशन मेथड को अपना के. सो बहुत सिंपल सी बात कही है. वाटर जो फ्रेश वाटर है वो बहुत कम है, ये कांस्टेंट रहता है, ना आप इसे क्रिएट कर सकते हो ना इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो, है ना, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मतलब ना ऐड कर सकते हो ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. तो इसको कंजर्व करना ही चाहिए. प्रॉब्लम हो रही है कि किसी किसी पार्ट में वाटर स्कैरसिटी है. रीज़न क्यों है, क्योंकि मतलब कंटामिनेट हो रहे हैं. सो कंजर्वेशन कैसे करें, कंटामिनेशन जो हो रहा है उसको हटाएं. अलग अलग तरीके से हम लोग कंजर्व करें वाटर को, जैसे स्प्रिंकलर्स ये सब यूज़ करके. सो यही इस यूनिट में था. नेक्स्ट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ हम लोग नेक्स्ट बार में पढ़ेंगे.